After the session, we'll have the question answer, sir. Now it is over to you, sir. Thank you, Dr. Dash, and welcome all participants. I'll be with you for 1 hour and 15 minutes to give you some input about the different formats of official communication. So before I start showing you the different formats and talk about different forms of official communication, I would like to brief you about what is communication all about. Communication is a process where messages are transmitted from one end to another through a medium. And you know, this word communication actually has arrived from a Latin word communicare. This Latin word communicare means to share with. So the communication, whatever communication be, it has to have two, one sender, one receiver. And this is to be done through a medium. And there should be a feedback procedure. So it is a two-way procedure. Somebody will send some signals, messages, and somebody will receive it. And somebody who will receive, he will give a feedback that he has received it. Then only the communication will be completed. Hello, any problem? So I understand everybody is listening me. Sir, no problem, sir. Now, I would like to share a small story. My voice is going straight directly? Okay. Yeah. Okay. So, I would like to share a small story. Perhaps you have heard about the name of Ramakrishna Paramahamsa. The Ramakrishna Paramahamsa is the guru of Swami Vivekananda. And the Ramakrishna has wife called Sarada Devi, Sarada Ma. The divine lady, actually, this Ramakrishna's wife is also respected and regarded as a divine lady. But he was of very rural origin, जिसको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है, हिंदी बोलना भी नहीं आता था. वो बांग्ला भी जो बोलते थे, वो बांग्ला भी उसको गांव वाले बांग्ला था. ठीक है. Now Ramakrishna and Swami Vivekananda had many foreign even admirers, disciples. And there is one great lady called Sister Nivedita, who was in fact is a fond admirer of our Swami Vivekananda. So after the death of this Ramakrishna, Sister Nivedita, who was from Eastern Europe, some of her friends came down to Calcutta. कलकत्ता में आए हुए थे और ये लोग चाहते थे कि ये शारदा माँ को मिलेंगे.
तो उसी टाइम रामकृष्ण मिशन आया था, और रामकृष्ण मिशन का जो मॉन्क्स थे वो लोग थोड़ा एप्रीहेंसिव थे कि अरे ये लोग कैसे बात करेंगे, हमारा माँ तो इंग्लिश जानते नहीं है और इंग्लिश में बात भी नहीं कर पाएंगे, और ये मिलके क्या करेंगे। लेकिन सिस्टर निवेदिता इंसिस्ट किया कि नहीं, मैं जब जाता हूं मिलता हूं माँ से, तब मेरा फ्रेंड्स लोग भी जाएंगे। तो बहुत प्रेस करने के बाद उन्होंने बताया ठीक है, रामकृष्ण मॉन्क्स लोग बताया ठीक है, 2 मिनट के लिए आपको मिलने का अनुमति दिया जाता है। So these ladies who have come from the far Eastern Europe, a group of ladies had gone to mother's place, मतलब शारदा माँ का कमरे में गए थे, और उन्होंने रामकृष्ण मिशन ने ये फॉर्मूला किया था कि 2 मिनट बाद इन्होंने एक हुइसल लगाएंगे, कोई मॉन्क ने बाहर खड़ा रहेगा और हुइसल होने के बाद वो लोग निकाल के आ जाएंगे। तो 2 मिनट बाद ये जो मॉन्क उनके साथ में ले गए थे वो हुइसल लगाया, लेकिन 2 मिनट के बाद 4 मिनट गया, 10 मिनट गया, 15 मिनट गया, वो सारे अंदर में ही था, कोई कुछ हो नहीं रहा है। तो ये थोड़ा मॉन्क थोड़ा ओ बहुत तो डर गया है, ये क्या हो गया, माँ के कमरे से ये लोग निकल नहीं रहा है और ये लोग क्या बात करेगा, इनको तो माँ को तो परेशान कर रहा होगा। देन आधा घंटा 1 घंटा बाद आप लोगों को कलकत्ता का मालूम है, तो ये जो घटना घट रहे थे ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के आसपास हो रहे थे, और गंगा का उस पार हमारा बेलूर मठ होता है जो रामकृष्ण का हेडक्वार्टर है, ठीक है, मिशन का हेडक्वार्टर। तो वहीं पे वो जाके बात किया, बोल रहा है कि ये लोग तो निकल नहीं रहा है, तो कुछ हो गया होगा। तो तब तो उसी टाइम कोई फोन वाला बात नहीं था, और नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो जब उन्होंने बताया नहीं भाई अभी आप अंदर जाओ, और ऐसा करते करते 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, जो उधर गया उधर से जो ऑर्डर लेके आया, तो 1.5 घंटा बाद जब घुस रहा है तब भी वो लोग निकला नहीं है। तो जब वो बोला कि नहीं अभी हम लोग सारे चलते हैं और उसको जाके बात करते हैं, अंदर जाते देखा शारदा माँ ने बहुत हंस रही है और ये लोग भी बहुत हंस रहे हैं, एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और इतना अच्छा से बात चल रहा है। उनका लैंग्वेज में उन्होंने बात कर रहा है और हमारा शारदा माँ ने बांग्ला में बात कर रहा है। तो बात ये होता है, इससे पता चलता है आपको कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। ये बोलने के लिए मैं ये एनेक्डोट को आपको सामने ले आया कि हम लोग सोचते हैं हम लोग कम्युनिकेशन में स्ट्रांग नहीं है, हमारा लैंग्वेज आता नहीं है, इंग्लिश आता नहीं है और हिंदी आता नहीं है, जो हमारा लैंग्वेज जो लैंग्वेज में मैं लिखूंगा। तो उसमें एक चीज मैं आपको बोल के हमारा स्लाइड में आएंगे कि भाई जो कम्युनिकेशन है, जो प्रोसेस, जो मैसेज देने का और लेने का प्रोसीड्योर है, इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो है जो मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं जो वर्बल कम्युनिकेशन है, और एक कुछ चीज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज समझने में थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए। कुछ चीज है हम बोल के लिख के कुछ भाषा में शब्दों का इस्तेमाल करके हम यूज करते हैं, और कुछ चीज है जो हम कुछ बात नहीं करते हैं, कुछ लिखा नहीं है, लेकिन तब भी कम्युनिकेट करते हैं। कैसे मालूम है? इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत, दिस इज से वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एरिया।
आपका बॉडी लैंग्वेज आपका जो कम्युनिकेशन, टोटल कम्युनिकेशन का 85% कंट्रीब्यूट करता है। इवन इफ यू टॉक इन, मतलब बहुत अच्छा लैंग्वेज में बात कर लिया, बहुत अच्छा लैंग्वेज में लिख लिया, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, इफ इट इज नॉट राइट, तो आपका कम्युनिकेशन फेल कर जाएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें से सबसे बड़ा है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। और फेशियल एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा चीज है द स्माइल इन योर फेस। इफ यू हैव a smile in your face, you will be a good communicator. People will accept you, start accepting you. But आपका मुंह पे कोई स्माइल नहीं है, और आप बहुत गंभीर रहते हो और ऐसे रहते हो कि आपको देख के डर लग जाता है सब लोगों को, तो आपका कम्युनिकेशन पुअर हो जाएगा। स्माइल छोड़ के आपका वॉइस टोन, वो जो सर से आप बात कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप कैसे बात कर रहा है, एक ही चीज बोलने का दो चार तरीका है। कोई आप किसी को बोल सकता है आप अभी चले जाओ, और ऐसे बोल सकता है भाई अभी थोड़ा बाद में आओ। तो ये जो चीज, एक ही चीज आप बोला है, लेकिन बोलने का जो टोन है उसी में भी अंतर रहने से आपका कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है। स्माइल और टोन छोड़ के आपका जो जेस्चर पोस्चर है, मतलब आप जैसे हाथ हिला रहा है, पाँव हिला रहा है, मतलब जैसे जो कर रहे हो आपका बॉडी में, सारे चीज आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये दिमाग में रखना चाहिए। बट टुडे वी विल बी इन फैक्ट डीलिंग विथ द वर्बल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, एंड दैट टू, ये वर्बल पार्ट में भी दो चीज है, एक है रिटन कम्युनिकेशन, एक है वर्बल कम्युनिकेशन जो ओरल कम्युनिकेशन। हम लोग किसी से बात करने का जो कम्युनिकेशन बात करेंगे वो ओरल कम्युनिकेशन होता है, और जो लिख के बताएंगे वो है रिटन कम्युनिकेशन। तो हम लोग अभी रिटन कम्युनिकेशन में ही ध्यान देंगे। और ये रिटन कम्युनिकेशन में भी हम लोग जब सरकारी ऑफिस में नौकरी कर रहा है, तो सरकारी ऑफिस का कुछ तरीका है, और कुछ जो सरकारी ऑफिस नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ तरीका है। तो अभी जो आज हम बात करते जाएंगे वो होगा सरकारी ऑफिस में जो कम्युनिकेशन हमारा होता है, इसका हम आपको बात करेंगे। और उसमें से जो जितना टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा, और उसके बारे में आपको वो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी स्लाइड में आते हैं। फर्स्ट स्लाइड आई विल टेल अबाउट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड कंसिस्ट ऑफ व्हाट। मतलब जब आपको कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, अच्छा कम्युनिकेशन करना है, तो पहले क्या क्या चीज हमको करना चाहिए। एक तो कौन भेजेगा, who will send it, who will send this communication. So now you are clear, we are not talking about total communication things, we are only dealing with the verbal communication, and that too only written verbal communication। and written verbal communication का भी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस का प्रोसीड्योर में जो कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन करने के लिए और कम्युनिकेशन लिखने के लिए ज्यादा, मतलब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिटन कम्युनिकेशन,
फॉर्मेट ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो उसके लिए हमको फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कौन ये चिट्ठी और ये जो कम्युनिकेशन करेगा, जो भी तरीका से कम्युनिकेट करेगा, वो कौन भेजेगा और किसको भेजेगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये कैसा, कौन सा फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये जो फॉर्मेट वाला बात है, राइट फॉर्म, एडॉप्ट राइट फॉर्म, ये राइट फॉर्म वाला बात आज आपको जानकारी में दिया जाएगा। और उससे आपको पता चलेगा कि मैं इनको चिट्ठी लिख रहा हूं कि सरकारी कोई ऑफिस में चिट्ठी लिख रहा हूं, सरकारी कोई कर्मचारी को चिट्ठी लिख रहा हूं, कि दूसरे कोई मतलब बाहर का कोई डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिख रहा हूं, कि पब्लिक को कोई चिट्ठी लिख रहा हूं, कोई सिटीजन को चिट्ठी लिख रहा हूं। तो मेरे को कौन सा फॉर्म यूज करना है, और वो फॉर्म हम आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको जब लिखने के टाइम आपको विजुअलाइज करना है कि आपको ये लेटर लिखने, ये कम्युनिकेशन डालने से कैसा रिस्पॉन्स आ सकता है। क्योंकि ऐसा लेटर आपको मिलेगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये तो आपको जानकारी है। तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो important to visualize the response, likely response on that। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अभी जो हम लिखने वाले हैं, जो हम बोलने वाले हैं, ये जो कम्युनिकेशन करेंगे उसमें ये थोड़ा क्लैरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ देना है। नेक्स्ट। सीधा बोलिए, जिसका मीनिंग निकाल सकता है, जिनको मिलेगा। और दूसरा है कंसिस्टेंसी होना चाहिए। पहले एक सेंटेंस में कुछ ऐसा चीज लिखिए जो नेक्स्ट वालों को थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मिलेगा, उसके साथ उसका लिंक होगा। ऐसा नहीं है कि पहले पैराग्राफ में मैं कुछ दूसरा चीज लिख दिया और सेकंड पैराग्राफ में और कुछ दूसरा चीज लिख रहा है। ये थोड़ा सा उसके साथ कोहेरेंस रहना चाहिए, कोहेरेंट फ्लो, कंसिस्टेंसी। और एक एक पैराग्राफ इंग्लिश में लिख दिया है, एक पैराग्राफ हिंदी में लिख दिया, ऐसा नहीं होना है। एक पैराग्राफ दूसरे किसी के बारे में और एक पैराग्राफ और दूसरे किसी के बारे में, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्मिटी भी रखना है। नाउ ये हो गया क्या आप लिखना चाहते हो। अभी क्या चीज अवॉइड करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिडंडेंसी, जो आप छोटा लिख सकते हो, जो चीज बड़ा करके लिखने का जरूरत नहीं है, जो आप 2 वर्ड में बोल सकते हो, वो आप 10 वर्ड में बोलने का जरूरत नहीं है। सो ये जो डेड वुड्स होता है उसको कट दीजिए। जो एक्चुअल बात है, इंपॉर्टेंट मेन चीज है, उसी को बोलिए। सो रिडंडेंसी एक्स आपको छोड़ना है, वर्बोसिटी छोड़ना है। वर्बोसिटी मतलब इतना बड़ा बड़ा बात, बड़ा इंग्लिश सेंटेंस लगा दिया, बड़ा चीज तो बड़ा कुछ लिख दिया, बड़ा बात नहीं करना है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल एंड रिपीट नहीं करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में जो चीज लिखा है सेकंड पैराग्राफ में भी वही चीज लिख रहा है, ऐसा नहीं है। थीम एक ही होगा लेकिन शब्द का दूसरा इस्तेमाल कीजिए। ये सरकमलोक्यूशन इज दी घुमा फिरा के बाद, वो वाला भी नहीं करना है। देन इट इज इंपॉर्टेंट टू समराइज। लास्ट पैराग्राफ में ये जो चीज आप नरेट किया है
उसका जो अभी क्या करना है और क्या चीज है, इसको थोड़ा जो कॉम्प्लिकेट हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ पढ़ के जो लोग जिसको मिला है, वो थोड़ा एक समरी मिल जाएगा उसको, सो दैट ही गेट्स द ये कॉम्प्लेक्स और लेंदी मैटर को थोड़ा समझ पाए। चलिए नेक्स्ट। सो अभी हम बात करेंगे, हमारे सरकारी ऑफिस में 13 टाइप्स ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, हम एक एक करके आपको बताएंगे। और वो फॉर्म, दिस फॉर्म वेयर इट इज एप्लीकेबल, किसको लिखने के टाइम में वो फॉर्मेट आप यूज करें, ये बात करेंगे हम। समझ गया? तो पहला और सबसे पॉपुलर फॉर्म है लेटर। और लेटर किसको लिखा जाता है सरकारी ऑफिस, ये पहले आपको आपका जानकारी होना चाहिए। तो पहले जो फर्स्ट लेटर का नेक्स्ट, उसमें जो आएगा, दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर corresponding with foreign governments, state governments, UPSC, constitutional bodies, heads of attached or subordinate offices, public enterprises means government enterprises, statutory authorities, public bodies means government bodies, and members of public. Generally, members of public means the citizen. So a letter, उसमें एक जो फॉर्म है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इसमें जो चीज होता है, जैसे आप लोगों को पता है, कभी लेटर आप लिखेंगे तो लेटर में आपको पहले एड्रेसी का नाम देना है, टू बोल के, उसके बाद एक सैल्यूटेशन से स्टार्ट होता है, जैसे सर और मैडम ऐसे बोल के स्टार्ट होता है। और then after telling everything what you want to convey, then you have to give, you see, the superscription, like yours faithfully, yours sincerely, like that. ठीक है? Now this is the format of letter. मैं जब तक नहीं बोलता हूं तब तक नेक्स्ट में दबाइए नहीं सर। So this is the format now. You see, very important, you have to follow. If you are using your letterhead, then you forget about writing this Government of India, Bharat Sarkar, जो भी ऑफिस का नाम, all forget. But if you are not, if you are using the white paper, you need to write, first is there should be a number. नंबर किसका? कौन सा नंबर? जो फाइल नंबर से आप ये ओरिजिनेट कर रहे हो. So number is the first, then your name of the office and all these things, your address, name of the office, जैसे लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद डेट, द बोल के इतना, टुडे इज जो 23 अगस्त, हाँ 2024, ये पहले ऊपर में लिखने के बाद देन टू बोल के आप एड्रेस ही किसको लिख रहे हैं उसी का नाम देना है, ठीक है? उसके बाद उसी का नाम, एड्रेस जो भी है, आजकल मेल आईडी, फोन नंबर, सारी चीज दिया जाता है, वो सब लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, कौन सा विषय पर आप चिट्ठी लिख रहे हो, ए लेटर लिख रहे हो। सो लेटर का सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। इट शुड बी कंसाइज, इट शुड बी ओनली 3-4 लेटर्स, 3-4 वर्ड्स, ठीक है? तो जो टॉपिक है, टॉपिक को लिखिए, डैश देके रिगार्डिंग लिख दीजिए, ये आपका सब्जेक्ट लिखने का ऐसा तरीका होता है। उसके बाद आपको कहा गया है कि आपको सैल्यूटेशन से स्टार्ट करना है, तो सर और मैडम करना है, ठीक है? सर ओब्लिक मैडम। और आपको मालूम है कि ये सर है तो सर लिखिए, आपको मालूम है कि ये मैडम है तो मैडम लिखिए, और आपको मालूम ही नहीं है तो सर ओब्लिक मैडम दोनों लिखिए, ठीक है? अभी सर ओब्लिक मैडम लिखने के बजाय कोई कोई मैडम ओब्लिक सर भी लिखते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग
जो हमारा कर्टसी है ये है कि लेडीज का पहले लिखने का। हाँ बोलिए। জলদি করো। অফিসে এখন জেরক্স করতে দিচ্ছি, ও বলছে দেরি হবে দেরি হবে, তবে বাইরে থেকে জেরক্স করিয়ে বানিয়ে পড়াও ধর্মবন্ধুকে বলো এই বাইরে থেকে করে নিয়ে তো করবে। नो सॉरी, तो बात ये है उसके बाद आपको कंटेंट्स लिखना है। आपको जो इंग्लिश लिखना है कि किसके बारे में आप क्या लिख रहे हो चाहते हो, ये सारे आप लिख दिया। जैसे विथ रेफरेंस टू योर लेटर दिस इज दिस आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दिस समथिंग यू आर राइटिंग। तो जो चीज लिखना है आपका कंटेंट लिखने के बाद आपको योर्स फेथफुली लिखना है। उसके बाद जो सिग्नेटरी का नाम आप लिखा है, डेजिग्नेशन लिखा है, उसका आपको सिग्नेचर लेना है। तो सिग्नेचर लेने के बाद आजकल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका ईमेल और टेलीफोन नंबर भी डालना पड़ता है सिग्नेचर जो किया है वो ऑफिसर का। तो ये हो गया लेटर फॉर्म। ये लेटर को पहले लेटर हो गया, उसके बाद नीचे में आप देखो लिखा हुआ है एंडोर्समेंट। Endorsement is this, you want to send this information, pass on this information to some other people. You want to give copy. तो उसको क्या करना आता है, उसमें भी आपको ये लेटर के बाद आप एक नंबर डाल के उसको कॉपी फॉरवर्डेड टू सच एंड सच बोल के आप भेज सकता है। Endorsement is also another type of communication. I will talk about that at a later stage. Okay, so now this is all about letter. आपको लेटर का बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि लेटर इज when we write to the outsiders in an office, से कोई इंसाइडर को ये नहीं दिया जाता है। हाँ, तो इनसाइडर मीन्स जो आपका ऑफिस से बाहर में आप लेटर लिख रहे हो। यू रिमेम्बर योर डेज ऑफ योर अपॉइंटमेंट। आप जब अपॉइंटमेंट आपको मिला था उसी टाइम, एक्सक्यूज मी 1 minute, आई विल टेक इट। हेलो, यस, এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি, একটু পরে কথা। तो अभी जो वो चीज बोल रहे थे कि लेटर आपको यू कैन रिमेम्बर the when you are not you have not joined your government office, like आयकर में नहीं ज्वाइन किया, बाहर में प्राइवेट नौकरी कर रहे थे कि नौकरी नहीं कर रहे थे, जब आपको ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला, आपको ये लेटर फॉर्म में एक लेटर आया था जो आपको अपॉइंटमेंट ऑफर हुआ था। क्यों? अभी आपको लेटर नहीं मिलता है, आपको अभी ऑफिस मेमोरेंडम मिलता है। क्यों? अभी आप अंदर वाला उसको सो ऑफिस का अंदर में जो कम्युनिकेशन होगा उसके लिए अलग फॉर्मेट यूज होता है। जो बाहर के साथ कोई ये ऑफिस से दूसरा ऑफिस में लेटर जाएगा, ये ऑफिस से मिनिस्ट्री में जाएगा तो लेटर जाएगा, आपका कोई फॉरेन ऑफिस में लेटर जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में लेटर जाएगा। ये सब चीज ध्यान में रखना चाहिए कि when I am writing outsiders, so then we will use the letter form. अभी नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये जो नेक्स्ट फॉर्मेट है, तेरा फॉर्मेट, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, एक प्रिंट आउट। सो अभी जो है, अभी we will talk about a form called
डीओ लेटर। आपको मालूम है होगा, जिन लोग कोई सीनियर ऑफिसर के साथ अटैच्ड है, और ये ऑफिसर्स लोग अपना कुछ पर्सनल इंटरवेंशन जब सीख करते हैं कोई किसी का, तब ये डेमी ऑफिशियल लेटर यूज करते हैं। So the demi official letter is basically used in correspondence between the government officers for an interchange or communication of opinion or information without the formality of the prescribed procedures. जैसे आपको योर्स फेथफुली लिखना ही है, सर मैडम लिखना ही है, बहुत फॉर्मल टाइप का लेटर, जैसे लेटर में हम लोग थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, इसमें क्या होगा, थोड़ा पर्सनल टोन can be used. It may also be used when it is desired that the matter should receive personal attention of the individual addressed. Since demi-official letter is written in the first person, इसमें ना letter में we write it in second person. I say you and all. ये फर्स्ट पर्सन में जब लेटर लिखता है एंड इन पर्सनल एंड फ्रेंडली टोन में लिखा जाता है, एंड it should be addressed by an officer in a ministry or department who is ordinarily not more than 1 or 2 levels below or above the officer to whom such communication is addressed. तो आप सोच लीजिए, आपका कोई ऑफिसर है जो डीओ लेटर लिखना चाहता है पर्सनल अटेंशन के लिए उनका सीनियर को, लेकिन उन्होंने 2 ग्रेड सीनियर ऑफिसर को लिख सकता है और 2 ग्रेड जूनियर को लिख सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक you see a person who is of under secretary, deputy secretary rank, he cannot directly write to the secretary. The deputy secretary can write it to the joint secretary level only, because 2 level high, director level and joint secretary level. Like here also आपका साइंटिस्ट डी है, साइंटिस्ट सी है, बी है, तो बी वालों डी तक लिख सकता है, डी वालों एफ तक लिख सकता है, ऐसा है। ठीक है, और कोई नॉन ऑफिशियल्स को भी डीओ लेटर लिखा जा सकता है। जैसे कोई आपके साथ एसोसिएटेड कोई एनजीओ है, तो एनजीओ को आप लेटर लिख रहे हो, दे आर नॉट गवर्नमेंट ऑफिस, बट स्टिल बिकॉज their chief is known to your chief, so your chief can always use a DO letter form while communicating with that NGO. ठीक है, so this is all about DO letter. हम क्वेश्चन लेंगे, आप लोगों का मन में जो भी प्रश्न आ रहा है वो लास्ट में हम लोग डील करेंगे। अभी थोड़ा आपको डीओ लेटर का फॉर्मेट दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, डीओ लेटर में पहले जो साहब लिख रहा है उसका नाम, डेजिग्नेशन लिखा जाता है, टेलीफोन नंबर, डिटेल्स ऊपर में बाएं तरफ, और उसके दाहिने तरफ फाइल नंबर, जो डीओ नंबर बोल के फाइल नंबर लिखेंगे, ऑफिस का नाम वगैरह दाहिने तरफ रहता है। ठीक है, इसके बाद नीचे डेट आता है, ऑफिस का नाम एड्रेस होने के बाद डेट आता है, और टेक इट नो टू टेक इट। तो उसके बाद एक चेंज देखिए, पहले हम लोग सर और मैडम लिख रहे थे, अभी क्या लिख रहे हैं, माय डियर और डियर, नाम भी लिख सकता है, डियर श्री सच एंड सच। और आपको जानकारी है, थैंक यू,
आप किसी को पर्सनल लेवल में जानते हैं, उसका फर्स्ट नेम जानते हैं, वो आप फर्स्ट नेम से भी लिख सकते हैं, फुल नेम से भी लिख सकता है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर क्लोज टू द पर्सन यू आर एड्रेसिंग दिस डियो लेटर. आप किसी को रामू नाम से बुलाते हैं तो रामू भी लिख सकते हैं आप उसमें. ठीक है, तो उसमें जैसे आप एक देन उसके बाद थोड़ा पर्सनल टच में आप एक लिखेंगे. जैसे इधर लिख दिया, देखिए, वी प्रपोज टू ड्रॉ अप ए model scheme, copy of the outline is enclosed. I shall be grateful if you would let me have your comments as soon as possible. I may add that we intend circulating the draft scheme formally to all departments in the due course of time. ये due course for their comments. उसके बाद एक थोड़ा सा, आप जब पर्सनली कुछ लिख रहा है, डियो लेटर लिख रहा है, तो आपको रिगर्ड्स देना है, लव देना है, और ऐसे करके देना है. सो इफ दे आर सीनियर, you can write warm regards, sincere regards, with only regards, or with regards. This type of, you know, superscription is also required, followed by yours sincerely or sincerely yours. Then you write your name or signature. ठीक है. एंड अभी एड्रेसी का नाम, जैसे लेटर फॉर्म में ऊपर में एड्रेसी का नाम था, अभी हम लोग क्या करेंगे, एड्रेसी का नाम नीचे लिखेंगे. टू बोल के ऑफिसर का नाम देना है, एड्रेस देना है, पूरा डिटेल देना है. इवन इफ दे कंटेन दे आर सम IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, तो उसका वो भी सर्विस का नाम भी लिखा जाता है नाम के बाद. साइंटिस्ट होने से साइंटिस्ट भी लिखा जाता है, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट एफ, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, व्हाटएवर वे दैट यू वांट टू राइट. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड फॉर्मेट. हम लोग लेटर समझ गया, डीओ लेटर भी समझ गया. अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारा थर्ड फॉर्मेट. आइए चलते हैं नेक्स्ट. ये बहुत पॉपुलर फॉर्मेट भी है, ये ऑफिस में हर लोगों को मिलते रहता है. कोई कुछ अच्छा किया, बुरा किया, सभी चीज आपको ऑफिस मेमो फॉर्म में मिलता है, मेमो मिल जाता है. किसी को डांटना है, दिस फॉर्म इज generally used for corresponding with other departments or in calling for information from or conveying from information to its employees. It may also be used in corresponding with attached and subordinate offices. It is written in third person and bears no salutation. इसमें ऊपर में sir, yes sir, dear, my dear कुछ नहीं लिखा जाता है. थर्ड पर्सन में लिखा जाता है. उसके बाद नीचे योर्स सैल्यूटेशन भी नहीं रहता है, जो योर्स फेथफुली, सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं रहता है. ओनली डेजिग्नेशन देके साइन करना पड़ता है. क्लियर? ऐसा लेटर मिलते रहता है ना आप लोगों को, जो नौकरी में करते हैं, हम लोग सरकारी नौकरी जो करते हैं, इन लोगों को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऐसे ही लेटर में भेजता है. कोई ये डिवीजन से वो डिवीजन में जाएगा, वो भी ऑफिस मेमोरेंडम में जाएगा. और इसका फॉर्मेट अभी नेक्स्ट स्लाइड देखिए. सो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्म. इसमें देखिए वही सेम चीज, फाइल नंबर रहेगा, उसके बाद ऑफिस का नाम, एड्रेस रहेगा, उसके बाद डेट रहेगा, उसके बाद ऑफिस मेमोरेंडम लिखा रहेगा. जो लेटर और डीओ लेटर में ऐसा लिखा नहीं रहता है. ओनली डीओ लेटर में नंबर के पहले डीओ लिखा जाता है, बट लेटर में नहीं, लेटर बोल के नहीं लिखा जाता है. लेकिन इसमें ऑफिस मेमोरेंडम लिखा जाता है. ठीक है.
उसके बाद सब्जेक्ट दिया जाता है। सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में लिख रहे हो वही चीज, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो कहना है वो आप एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 10 पैराग्राफ में लिख लो। देन यू हैव रिटन योर, मतलब जो भी चीज आप एक्सप्रेस करना चाहते हो दैट यू हैव रिटन। देन नो सैल्यूटेशन और नो सुपरस्क्रिप्शन, कोई योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली नहीं लिखेंगे। हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ मैं साहू को बोला है लिखने के लिए, मैं देखता हूँ बोलता हूँ लिखा के नहीं। मैं आई एम ऑन अदर ऑनलाइन मीटिंग, हाँ थोड़ा सा बात करता हूँ दूसरे जगह, ठीक है। मैं, हाँ बात कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ, हाँ ओके। तो दिस इज रिटन इन द दी अंडरसाइन बोल के लिखता है, आई बोल के नहीं लिखता है। ये साहू साहब को बोलिए तो फोन करेगा अभी जल्दी जल्दी, ठीक है साहू, ठीक है। तो क्या है, थर्ड थर्ड पर्सन में हम लिख लिया जो भी मेरा चीज लिखना था। उसके बाद हम योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा नाम लिख के, डेजिग्नेशन लिख के साइन करेंगे। और एड्रेसी का नाम नीचे होगा, जैसे डीओ लेटर में एड्रेसी का नाम नीचे हुआ और लेटर में ऊपर हुआ। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कौन सा फॉर्मेट में एड्रेसी के नाम ऊपर होगा, कौन सा फॉर्मेट में नीचे होगा। बेसिकली अंतर ये है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। अभी चलते हैं फोर्थ में, फोर्थ टाइप ऑफ नोट, फोर्थ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज कॉल्ड आईडी नोट, इंटर डिपार्टमेंटल नोट। देखिएगा मिनिस्ट्री में आपको लिखना है कि मिनिस्ट्री को लेटर लिख रहा है, कोई चीज प्रपोजल भेजना है तो आईडी नोट के से एक मिनिस्ट्री से और मिनिस्ट्री को जब जाता है वो भी आपको ऐसे फॉर्मेट में जाता है। So this form is generally employed for obtaining the advice, views, concurrence or comments of other departments on a proposal or in seeking clarification of the existing rules, instructions, etc. हेलो सर एक चीज बोल रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री से बार बार फोन आ रहा है उसके बारे में, वही जो आपका हिंदी इंग्लिश रूल्स रेगुलेशंस का। मैं वो उन्होंने बोल रहा है कि आप एक लाइन लिख के दे दो कि आपके पास किताब ऐसे है नहीं अभी, और हम लोग किताब उसको प्रिंट करके आपको दे रहे हैं। तो ऐसे करके एक लाइन का मैसेज कर दो बस। भेज दिया है ना, लेकिन सुशील अभी भी फोन कर रहा है, एक लाइन उसको चाहिए कि आपके पास किताब नहीं है, हार्ड कॉपी किताब नहीं है ये बोल के। नहीं वो तो विश्वजीत लेके अभी घूम रहा है, अभी वो किया नहीं है, आप देख लीजिए वो नहीं किया है और सोमवार करेगा बोल रहा है। तो ये सुशील फोन कर रहा है बार बार, प्लीज प्लीज ओके। सो सॉरी, मिनिस्ट्री से कॉल आते रहता है तो हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है। सो नाउ ये जो चीज मैं बोल रहा था, इट में ऑल्सो बी यूज्ड बाय अ डिपार्टमेंट व्हेन कंसल्टिंग इट्स अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस एंड वाइस वर्सा। सो कोई आप जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई क्लैरिफिकेशन लेना है कि कोई आपका फाइनेंस विंग से जब लेता है, कोई प्रपोजल आपका है, आपको फाइनेंशियल कंकरेंस लेना है, ये सारी चीज हम लोग भेजते हैं आईडी नोट के हिसाब से। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आई विल रिक्वेस्ट टू गो टू नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें ये नहीं है नेक्स्ट, ये थोड़ा पेस्ट गलत हो गया। एनीवे आई विल टेल यू व्हाट इज द फॉर्मेट, ये पेस्ट करने के टाइम गलती हो गया।
चलिए आईडी नोट दिखाइए, आईडी नोट में आइए, ऊपर में आइए, ऊपर और एक, हाँ। तो इसमें फॉर्मेट थोड़ा आपको मतलब इधर नहीं है, आई विल सेंड यू द फॉर्मेट इन द पीडीएफ, आई विल गिव इट टू यू, ऑल ऑफ यू, द फॉर्मेट। हाँ, तो मैं क्लास का खत्म होने के बाद आई विल सेंड द पीडीएफ टू दास साहब। दास साहब, यू कैन सर्कुलेट इट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और ये आईडी नोट में जैसे हम लोग ऑफिस मेमो में ऊपर में वो नंबर ऊपर में नंबर डालता है, वो नंबर नहीं डालना है, ओनली ऑफिस का नाम लिखना है। ठीक है, ऑफिस का नाम लिख के, सब्जेक्ट लिख के, टेक्स्ट को लिख के, कोई योर्स फेथफुली का सैल्यूटेशन नहीं है, वो भी नहीं है, ओएम का जैसे होता है सुपरस्क्रिप्शन नहीं है, ओनली एड्रेसी का नीचे नाम लिखो और नंबर उसी का नीचे लिखो। एड्रेसी लिखने के बाद आईडी नोट नंबर बोल के फाइल नंबर, दिस इज द फॉर्मेट। सो आईडी नोट में भी आप एड्रेसी का नाम नीचे लिखोगे, और इवन दिस इज द फर्स्ट टाइम you are writing the file number at below. So this is very important. ID note और intersection note जो भी होता है, वो चीज में आपको नीचे नंबर देना पड़ता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट आई विल गिव यू इन सेपरेट। ये थोड़ा सा पेस्टिंग में गलती हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। हाँ, now coming down to very important communication form which is called office order. ये देखिए, this form is normally used for issuing instructions meant for day-to-day internal administration. कि आपको किसी लीव ऑर्डर है, कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमॉन्ग ऑफिसर्स एंड सेक्शंस, किसी का अपॉइंटमेंट रेगुलराइज करना है, ट्रांसफर रेगुलराइज करना है, जॉइनिंग टाइम रेगुलराइज करना है, सारे चीज आपको ऑफिस ऑर्डर के तौर पे दिया जाता है। इसमें भी नो सैल्यूटेशन, नो सुपरस्क्रिप्शन, और फॉर्मेट में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, ये देखिए, ओनली नंबर ऊपर, उसके बाद ये ऑफिस का नाम, एड्रेस, डेट लिखा रहेगा, ऑफिस ऑर्डर, और एक ऑफिस ऑर्डर का नंबर भी दिया जाता है। उसके बाद उसको कंटेंट लिख लीजिए, किसी का अपॉइंटमेंट है, किसी का छुट्टी है, जो भी है वो सब लिखिए। उसके बाद नो सर और मैडम, इधर भी कोई योर्स फेथफुली लिखना नहीं है, इधर कुछ नहीं है, ओनली नाम लिखिए, डेजिग्नेशन लिखिए, टेलीफोन नंबर, ईमेल दे दीजिए, साइन कर दीजिए, और इसका कॉपी टू सच एंड सच कर दीजिए। So this is a format for issuing office orders. देखिए, आप लोग एलडीसी है, धीरे धीरे आपका प्रमोशन होगा, आगे बढ़ेंगे, आपको ये सारे फॉर्मेट के ऊपर मास्टरी होना चाहिए, बिकॉज द ऑफिसर्स एंड mainly the technical officers like your scientists and technical officers, they have got their domain स्पेसिफिक नॉलेज, बट ये जो अभी जो आपका जानकारी मिल रहा है, ये जानकारी में ये आपका मास्टरी होना चाहिए। आप ही बताओगे आपका बॉस को कि सर इसका ऐसा फॉर्मेट यूज होगा। सो दिस इज योर डोमेन, यू हैव टू टेल योर सीनियर, योर ऑफिसर्स हियर इन द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन कि सर इसका ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए एज पर मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीड्योर, जो मैं कल बात किया था। और आपके पास वो किताब रहेगा तो आप तुरंत देखा भी सकते हैं। ठीक है, और इसका जो सारे पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में, जो है ऑर्डर। देखिए, ऑफिस ऑर्डर और ऑर्डर में एक ही अंतर है, इसका फॉर्मेट एक ही है, लेकिन ये ऑर्डर कब यूज होता है और ऑफिस ऑर्डर का, ऑर्डर में फाइनेंशियल सैंक्शन देने के टाइम हम लोग कुछ ऑर्डर देते हैं। जैसे इसमें कहा जाता है कि सैंक्शन ऑफ दिस मच अमाउंट इज hereby conveyed, और सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज hereby conveyed,
ऐसे बोल के लिखा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस. So this form is generally used for issuing certain types of financial sanctions and for communicating government orders in disciplinary cases. उसके बाद डिसिप्लिन जब स्टार्ट होता है वो आपको ऑफिस मेमोरेंडम में चार्जशीट होता है. जब पेनल्टी बनता है, पेनल्टी आता है, तो ये ऑर्डर फॉर्म में होता है, क्योंकि उसके ऊपर ही कुछ फाइनेंशियल वो रहता है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन रहता है, तो वो ऑर्डर फॉर्म में आता है. सो दिस इज व्हाट इज अबाउट ऑर्डर. इसका फॉर्मेट दिखा दीजिए. नेक्स्ट स्लाइड देखिए. सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज hereby accorded, is accorded under rule इतना इतना ये वो है, और इसके ऊपर कितना इररिकवेबल लॉस ये है. उसके बाद कॉपी फॉरवर्डेड टू, ये चीज ऑफिस ऑर्डर, ऑर्डर, ऑफिस मेमोरेंडम, ये सब लिखा रहता है. डीओ लेटर में डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा नहीं जाता है, ओनली नंबर के पहले DO लिखा जाता है. लेटर में तो लेटर लिखता ही नहीं है, ओनली लेटर फॉर्मेट यूज होता है. ठीक है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज नोटिफिकेशन. यू नो, नोटिफाई हो जाता है, कुछ चीज गवर्नमेंट का कुछ डिसीजन होता है तो उसको नोटिफाई होता है. So this form is mostly used in notifying the promulgation of statutory rules and orders, appointments and promotions of gazetted officers through publications in the Gazette of India. Gazette में notify होता है जो gazetted officer होता है. और भी देखिए, आपको जब पे कमीशन आता है, सारी चीज जो गैजेट में आता है, ये गैजेट बोल के गैजेट ऑफ इंडिया होता है, उसी में जो नोटिफाई होता है उसको नोटिफिकेशन के तहत लिया जाता है. सरकारी सिद्धांत जो गवर्नमेंट डिसीजन है, ये नोटिफिकेशन के तहत पर गैजेट में छापा जाता है. इट इज प्रिंटेड देयर, एंड उसी का फॉर्मेट भी आपको दिखाएंगे. दिखाइए. देखिए, जैसे ये साच आदमी, ये इसको अपॉइंट किया गया है ऐसा पोजीशन में, ऐसा होता है. और रूल्स आपका जैसे पे कमीशन रूल्स भी नोटिफाई होता है, SRO नंबर और ये नंबर, GSR नंबर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है. तो इसका फॉर्मेट में भी नो सैल्यूटेशन, नो सुपरस्क्रिप्शन, नोटिफिकेशन लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है, बस साइन होके एड्रेसी नीचे, नंबर ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट में जाइए. Now coming to the resolution. Resolution is also, this is a form of communication used for making public announcement of decisions of government in important matters of policy. That is the policy of industrial licensing, appointment of committees, commissions of inquiry. Resolutions are also published in the Gazette of India. ये देखिए, ऐसे जैसे पे कमीशन का पे फिक्सेशन रूल्स तो आ गया है नोटिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन उसके पहले मंत्री आके बड़ा वो देता है, एक पढ़ के सुनाता है, वो रेजोल्यूशन के अंदर आता है. सो अगेन इफ तो ये भी वही नोटिफिकेशन के तरह पे ही होता है. इसका फॉर्मेट ऐसे कुछ नहीं है. जैसे हम we hereby resolve, the government of India resolve that बोल के लिखा जाता है. ठीक है. इसका कोई फॉर्मेट ऐसे नॉर्मली नहीं है, बट स्टिल थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए. तो फॉर्मेट जो नोटिफिकेशन का है वही रेजोल्यूशन में भी ऐसे ही है. कुछ एक नंबर वगैरह पड़ता है और रेजोल्यूशन नंबर, उसके बाद जो गवर्नमेंट क्या रिजॉल्व किया है वो थोड़ा लिखा जाता है. नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज हम बताएंगे, जो प्रेस कम्युनिके बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल. आजकल हम लोग जो कर रहा है वो प्रेस में जाता है. डिफरेंट एक्टिविटीज व्हाट यू आर डूइंग. So this form is used when it is proposed to give wide publicity to a decision of government. A press communique is more formal in character than a press note and is expected to be reproduced intact by the press. A press note, on the other hand, is intended to serve as a handout to the press, which they may edit, compress or enlarge it as deemed fit. So press communique जो जाता है वो सीधा सीधा छापना है, और प्रेस नोट जो जाता है उसके ऊपर न्यूज़पेपर को और जो मीडिया में उसको प्रिंटिंग होगा उसको एडिट करने का अधिकार रहता है. ठीक है.
तो इसका भी कोई फॉर्मेट नहीं है, बनाना पड़ता है और बना के सर्कुलेट करना पड़ता है प्रेस वालों को। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये फॉर्मेट कर दिया है, बट दिस इज नॉट इवन, मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। यू कैन डू इट इन योर at your, but it should have the appropriate authorities approval. तो जो चीज जाएगा वो थोड़ा सीनियर मोस्ट ऑफिसर शुड see to it and approve it। जो चीज आप प्रिंट मीडिया को कि जो भी मीडिया को आप प्रेस कम्युनिके भेज रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ, वो जो चीज मैं बोल रहा था कि इंडोर्समेंट बोल के एक कम्युनिकेशन है, उसको आप पहले भी आप देख चुके हैं। एक लेटर का नीचे फाइल नंबर डाल के, से यू हैव गॉट ए लेटर फ्रॉम योर मिनिस्ट्री, नाउ यू वांट टू सेंड इट टू सम अदर। ठीक है, आपका ऑफिस से आपका फाइल नंबर लगा के वो लेटर रहेगा, पूरा लेटर रहेगा, और नंबर डाल के आपका फाइल नंबर नीचे, आपका फाइल नंबर डाल के कॉपी टू बोल के दूसरे फॉर कंप्लायंस ऐसे भेज सकता है। उसको कहते हैं इंडोर्समेंट। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आप लेटर नहीं लिख रहे हो, लेटर मिनिस्ट्री से जो आया है उसको आप दूसरे जगह भेज रहे हो फॉर कंप्लायंस और फॉर इंफॉर्मेशन वॉट एवर। तो इस दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन ए पेपर हैज टू बी रिटर्न्ड इन ओरिजिनल और टू सेंडर और द पेपर इन ओरिजिनल। कल कुछ बोल रहे थे कि फॉरवर्डेड इन ओरिजिनल, रिटर्न इन ओरिजिनल, ऐसे कुछ हो रहा था ना, ओवर, और इट्स कॉपी इज सेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन। It is also used when a copy of communication is proposed to be forwarded to parties other than the one to which it is addressed. So, सोचिए मिनिस्ट्री को पर लगा कि ये इसको हम इन्फॉर्म कर दे, लेकिन हमको लगा बाद में, मेरे को मिलने के बाद हमको लग रहा है कि और कि दूसरे को भी ये जानकारी जाने का जरूरत है, इसीलिए मैं मेरा फाइल नंबर लगा के बाकी लोगों को सर्कुलेट किया। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो एंडोर्समेंट का है, देखिए एंडोर्समेंट में कुछ नहीं है, अपना फाइल नंबर लगा के और इसको जो कॉपी जा रहा है ऊपर का कॉपी लगा के आप फॉर नेसेसरी एक्शन इंफॉर्मेशन भेज देना। ठीक है, और उसके बाद आपको 11 नंबर में हम बोल रहे हैं सर्कुलर। सर्कुलर होता है कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, लाइक दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रिसीव्ड और important and urgent decisions taken internally have to be circulated within a department for information and compliance by a large number of employees। सबको जानकारी देने के लिए तो वो सर्कुलर फॉर्म में यूज होता है। तो सर्कुलर का फॉर्मेट दिखा दीजिए, है तो दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड। नहीं है तो मैं उसको पीडीएफ आपको दिखा दूंगा। उसके बाद एक है एडवर्टाइजमेंट। सरकारी ऑफिस से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जाता है, एक तो टेंडर के लिए जाता है, कुछ रिक्रूटमेंट नोटिस जाता है। तो इसको ना, इसको भी एक फॉर्मेट होता है, उसको भी जानकारी आपको चाहिए। सो दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर रीचिंग आउट टू द जनरल पब्लिक टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कुछ वो भी हम भेजते हैं। तो so this form is used for reaching out to the general public to create awareness about government policies and operational matters. It may take the form of audiovisual or written communication or both. कुछ भी है, देखिए इंडिपेंडेंस डे में कि कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल डे में गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एडवर्टाइज करना पड़ता है कि ऐसा है, गवर्नमेंट ये बोल रहा है, ऐसा हम लोग कर रहा है, तो जस्ट टू मेक पीपल अवेयर। तो इसका भी आपको बनाना पड़ेगा, और ये भी एक कम्युनिकेशन का फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट जब होगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और लास्ट स्लाइड दिखाइए। लास्ट स्लाइड मतलब लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये है ईमेल। आजकल क्या है, आजकल ईमेल, पहले क्या होता था, टेलीग्राम होता था, बहुत सारे टेलीप्रिंटर मैसेज होता था। आजकल वो सब नहीं है, आजकल ईमेल भेजा जाता है, और ईमेल का कुछ फॉर्मेट नहीं है। इसको
This is a paperless form of communication to be used by department having a computer facilities supported by internet or intranet connectivity. ये जैसे भी है, हम एक लाइन PFA, प्लीज फाइंड अटैचमेंट, PFA लिख के छोड़ देता है, वो भी ईमेल हो जाता है। तो ईमेल का कोई फॉर्मेट नहीं है, ईमेल में जो भी चीज लिख के भेजना पड़ता है वो आजकल, दिस इज ऑल्सो ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये मैं मोटा मोटी आप लोगों को सारे कम्युनिकेशन टाइप का फॉर्म्स बताया है। अभी आई विल try to conclude with certain other things. Just next slide में जाइए। Let us do one exercise, ठीक है? आप लोगों को हम एक स्लाइड दिखाएंगे, ठीक है? और 1 मिनट टाइम देंगे, ठीक है? हम सुनेंगे आप लोगों से कि आप कितना मेमोराइज करेंगे, ठीक है? मेमोराइज करेंगे, जो चीज है उसको आपको लिखना है, ठीक है? तो दास साहब, इसको आपको थोड़ा सहयोग चाहिए है। दास साहब, आप मेरे को सुन रहे हैं? हाँ सर, या डॉक्टर दास, सर करना है नेक्स्ट, जब हम बताएंगे आप नेक्स्ट स्लाइड को खुल खुल के रखेंगे ठीक फॉर है। 1 मिनट, फॉर 1 मिनट, ठीक है? ओके ओके और इन लोगों को बोलिए जो चीज अभी वो देख के कुछ नहीं लिखेगा, उसके बाद वो बंद करेगा, दे शुड बी ट्रू टू देम, ठीक है? समझ रहा है? ओके। मतलब मीन्स उनको एक मिनट उनको दिखाएंगे, उसका बाद वो स्लाइड हटा देंगे। हाँ, वो कुछ देख के नहीं लिखेगा, जब हाँ, स्लाइड बंद होगा तभी देखेगा, ठीक है? ओके ओके। तो सुनिए सर, सुनिए 1 मिनट, ये स्लाइड आप दिखाएंगे, दिखाने के बाद आप अगेन ये एक्सरसाइज स्लाइड में आ जाएंगे, हाँ ठीक है, बैक आ जाएंगे। आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे आएंगे, एक्सरसाइज हाँ स्लाइड में आ जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में हाँ नहीं जाएंगे, ठीक है सर। पहले वाला स्लाइड एक्सरसाइज स्लाइड में आएंगे, ठीक है? सो ऑल पार्टिसिपेंट्स, आर यू रेडी? डोंट पिक अप योर पेन एंड पेंसिल, वो छोड़ दीजिए अभी, अभी आपको देखना है, ठीक है? काइंडली दास साहब, अभी नेक्स्ट स्लाइड इनको दिखाइए फॉर 1 मिनट, प्लीज। 1 मिनट देखना, 1 मिनट देखना। करो, करो। हाँ, जस्ट फॉर 1 मिनट, डोंट, नोबडी शुड राइट एनीथिंग, ओनली थोड़ा 1 मिनट तक देखिए इनको। मैं बताऊं। सर हो गया, पीछे स्लाइड में चले जाइए, हाँ बस। अभी आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो चीज आप लोग लिखा, आप लोग देखा है, उसको एक एक करके 1 2 3 4 करके जितना मेमोराइज कर सकता है उसको लिख लीजिए तुरंत 1 मिनट के अंदर। सब लोग लिखिए, जो आप देखे, जो याद में आपको आ रहा है वो सब लिखिए। अपना पेन में लिखिए, पेन पेपर में, चार्ट में नहीं।
1 मिनट टाइम में लिखिएगा, जल्दी खत्म कीजिए। हो गया और टाइम चला गया। हो गया, तो बोलिए। हाँ, अब कोई भी बंद बंद कर कोई दीजिए, बंद करके इनको बोलने के लिए बोलिए या कितना कितना वो लोग लिख पाया, हाउ मेनी दे कुड रिमेम्बर एंड राइट, एक एक करके सब लोग बताइए। म्यूट बंद कर दीजिए, म्यूट खुल के बात कीजिए। हाँ बोलिए, कोई कुछ कोई मतलब आप में कोई तो लिखे होंगे ना, बोलिए आप लोग। कितना लिख पाया? कुछ चार्ट देखो। 3-4 लिखे हैं कोई ओनली। हाँ, 3-4 लिखे है ना। हाँ 12 से ओके, और 9 ओके, 9 ओके। अच्छा ठीक है, तो हमको लगा 12 7 9 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अभी 10 साहब 10, एक 10 है, ठीक है ओके, ठीक है ओके, और ठीक है 1 2 3, ठीक है 8 8 भी लिखा है कोई, ठीक है 6 6 7, ठीक है, ठीक है 1 2 3, कोई 3 लिखा है, कोई 1 लिखा है। ठीक है, मैं एवरेज लेता हूं, ठीक है। तो इसका 12 7 9 10 8 6 7 3 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ और एक 11 भी है, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, 12 7 19 8 64, ये 64 हुआ, और इसका एवरेज बनता है 6.4, ठीक है। अच्छा, अभी सेकंड स्लाइड में चले जाइए, चलिए आ जाइए, एक्सरसाइज के बाद फर्स्ट स्लाइड छोड़ दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में जाइए, नेक्स्ट स्लाइड। अभी 1 मिनट आप लोग देखिए, 1 मिनट, जस्ट सी फॉर 1 मिनट अगेन। कुछ नहीं लिखना है आप लोगों को। वन अरे वन इसको 1 मिनट हो गया। 1 मिनट हो गया, अभी उसको लिखिए, ये छोड़ दिए, एक्सरसाइज में चले जाइए, एक्सरसाइज में प्लीज बस गो टू द एक्सरसाइज। हाँ। हाँ, अभी 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 लिखिए, अभी सब लोग लिखिए कितना आप लोग याद कर पा रहे हैं। अगेन 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 अगेन, कितना याद कर पा रहा है, देखिए कोई एक 20 लिख लिया, उसके बाद कोई 16, अब वह 16 लिखा है, बोलिए नेक्स्ट। और कोई, और कोई नहीं लिखा? और कोई देखे नहीं क्या, कितना आइटम टोटल, कितना आइटम देखे, आप लिख दीजिए नंबर ऑफ आइटम्स। तो सुनिए, मैं जो देख रहा हूं, ये इसी में सब लोगों का स्कोर लेके मेरा एवरेज आया था 6.4, और इसमें 20 और 16 मतलब 36 में 2 आदमी, तो 18 हो गया एवरेज। तो इसमें से क्या, ये देखिए 15 आया है। इसमें तो तो ज्यादा है सर। आपको ये इसमें से क्या मतलब, व्हाट इज द सीख, व्हाट इज द लर्निंग? लर्निंग एक है
मैं आपको बताना चाहता हूँ, थर्ड स्लाइड में आइए दास साहब, एक्सरसाइज के बाद फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड में आइए। देखिए सेकंड स्लाइड में जो है, ये स्लाइड में हम किसी का नाम भी नहीं लिखा, लेकिन आप लोग ज्यादा याद कर पाया इसको। किस लिए कर पाया? बिकॉज आई हैव सिस्टमेटिकली ड्रॉन, सिस्टमेटिकली रिटन। और जब सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली कुछ चीज को प्लेस किया जाता है तब याद ज्यादा रहता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है जब मैं सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करता हूं। तो ये चीज आपको मैं देखा कि जब सिस्टमेटिकली रखा जाता है, मैं दूसरे स्लाइड में सबका नाम भी लिख दिया था तब भी आप लोग याद नहीं कर पाया, लेकिन जब इसमें नाम नहीं लिखा तब भी आप लोग ज्यादा याद कर पाया। तो इससे पता चलता है जो इफ in your communication you are systematically presenting things, then you will be able to effectively communicate. Okay, so coming to the next slide, I have got 2 slides more only. Next. So कुछ important point मैं याद दिलाना चाहता हूं इसमें। चलिए next. So written communication should have what? ये बोलिए, next slide, next. It should be clear and concise. Then it should result in desired response. जो पहले विजुअलाइज किया था कि कैसा रिप्लाई आना चाहिए, so this should result in desired response and it should be divided into paragraphs. Next. It should have a coherent flow of ideas. First para, second para के अंदर some coherence रहना चाहिए. Be logically sequenced. Logically कौन सा चीज पहले बोलना चाहिए, next कौन सा. Have reference to previous communication. कुछ पिछले कुछ communication हुआ था उसको refer करना चाहिए. Then be initialed by your approving officer. This is also important. Official communication. So this should have approval of your approving officer. Next. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जस्ट कुछ चेकलिस्ट के बारे में कुछ बताऊंगा जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहोगे ऑफिशियली। तो एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन शुड इंडिकेट व्हाट, क्या क्या चीज उसमें होना है। फाइल नंबर होना ही है। आपको जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन जाएगा, नेम, एड्रेस, फोन, फैक्स नंबर ऑफ सेंडर ऑर्गेनाइजेशन, आजकल ईमेल भी देना पड़ता है। देन नेम, डेजिग्नेशन ऑफ एड्रेसिंग विद पोस्टल एड्रेस, ये भी देना पड़ता है। देन सैल्यूटेशन जहां पर होना है उसमें सैल्यूटेशन देना है, सुपरस्क्रिप्शन देना है। देन सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन यू शुड राइट, डोंट स्टार्ट राइटिंग द लेटर, यू राइट द सब्जेक्ट फर्स्ट। देन नेक्स्ट, नंबर एंड डेट ऑफ लास्ट कम्युनिकेशन को रेफर कीजिए, रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एनक्लोजर्स टू अकम्पनी फेयर कॉपी, कौन सा एनक्लोजर जाएगा उसका पता करना चाहिए। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन जो आपको योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली जहां लिखना है। और ये कैसे जाएगा, स्पीड पोस्ट में जाएगा, मेल में जाएगा कि कहां से जाएगा, कुरियर से जाएगा कि क्या जाएगा, और उसका अर्जेंसी ग्रेडिंग, इसको सेक्शन ऑफिसर बिलो कोई आप लोग डिसाइड मत करो। एलडीसी से आपको पता नहीं है इसका क्या प्रायोरिटी है, तो यू हैव टू शो इट टू योर सीनियर कि इसको कैसे प्रायोरिटी दिया जाएगा। और किसी को कॉपी देना है, एंडोर्समेंट किसको करना है वो भी करना है। तो all these things keeping in mind, and then the last is the name, designation, email, phone number of the sender. Next, बस यही है हमारा कहना। Next slide. I am grateful to Dr. Dash, to all the participants, and thank you to be patient enough to hear me, tolerate me for 1 hour 15 minutes. Thank you so much. I have given my number, I have given my